Namaskar. Respected Sri Mallikarjun Kharge ji, Honorable AICC President, Member of Parliament, respected WBPCC President Sri Shubhankar Sarkar ji, respected Ghulam Ahmed Mir ji, respected Jairam Ramesh ji, and all other senior leaders on the podium, our distinguished guests, members of media, and my dear brothers and sisters of West Bengal. Today marks a significant moment as we gather for the launch of the Manifesto of Indian National Congress for our beloved state of West Bengal. A manifesto is not just a document, it is a promise, a vision, and a roadmap for the future. It reflects our commitments to the people of this state, our understanding of their struggles, and our determination to build a better tomorrow for this wonderful, glorious state of West Bengal. The manifesto has been crafted after listening to the voices of our youth, women, farmers, and workers who deserve to be heard not only during the elections, but also during every single day. Our vision is clear. West Bengal needs to lead with growth, with fairness and unity. A state where governance is not about control, but about service, where politics is not about division, but about development. As we unveil the manifesto today, we do so with a sense of humility and a sense of responsibility. We invite the people of West Bengal to read it, to question it, and to hold us accountable, because democracy thrives when people participate in it directly. So let this not just be a launch of a document, but the beginning of a renewed journey for the state of West Bengal. I would first like to welcome and request our Honorable President, Sri Shubhankar Sarkar, our PCC President, to kindly felicitate and welcome our AICC President, Sri Mallikarjun Kharge ji. A big round of applause, please. Moving on, we'll request Sri Shubhankar Sarkar ji to kindly felicitate Sri Jairam Ramesh, AICC GS, and in charge of Media and Communication of India. Okay. আপনাদের অনুমতি নিয়ে I would like to present one of the oldest book of centenary of Pandit Jawaharlal Nehru, very renowned book to our Honorable President Kharge ji. I'll request our President Shubhankar Sarkar ji to felicitate Sri Jairam Ramesh ji, Ghulam Ahmed Mir ji, BP Singh ji, Prakash Joshi ji, Amba Prasad ji, and Charan Singh Sapra ji. I will now request Sri Janab Ghulam Ahmed Mir ji to kindly say a few words. Okay, I'll
request Sri Pradeep Bhattacharya, who is the chairman of the Manifesto Committee, to kindly say a few words. হ্যালো, নমস্কার। আমাদের পরম সম্মানীয় খাড়গেজি, মঞ্চে উপস্থিত মীর সাহেব, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে যারা দিল্লি থেকে এসেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। It is really very remarkable day for us that we are releasing our manifesto. We are really grateful to our Congress President. He has taken all the way, coming from Delhi to Assam and to Bengal, to release this manifesto. আমাদের ম্যানিফেস্টোর মধ্যে আমরা জেলার কথা বলেছি, যেটা আমার নিজের ধারণা পশ্চিমবঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দল জেলাগুলোর উন্নয়ন কিভাবে করতে হবে সেই প্রসঙ্গে তারা যান না। তারা কেবলমাত্র কাকে কত টাকা দেবেন সেই অঙ্কটাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেন। আমরা কিন্তু জেলা স্তরে পৌঁছেছি, একেবারে মাটিতে পৌঁছেছি, যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনের কথা আমরা শুনতে পেয়েছি। তাই আমাদের ম্যানিফেস্টোর অভিনবত্ব আছে, নতুনত্ব আছে। তরুণদের কথা আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলেছি, মা বোনদের কথা গুরুত্ব দিয়ে বলেছি। বাংলার মাটিতে মা বোনেরা নির্যাতিত হচ্ছেন, মা বোনেরা ধর্ষিত হচ্ছেন, সেই নির্মম কাহিনীর কথা মনে রেখে মা বোনদের ইজ্জত সম্মান রক্ষার কথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছি। আমরা চাই আমাদের এই বাংলার মাটিতে যে বাইনারি, the type of binary what is prevailing in West Bengal, I urge upon my Congress workers to come forward this time when we are fighting alone to break this binary BJP and Trinamool and high up our Congress flag and say it very clearly that Congress is keeping alive, and in the next time in Bengal the Congress will come. There is no doubt about it. আমি চাই পশ্চিমবাংলার মাটিতে সেই দিন আসুক যখন আমরা যে হারিয়েছিলাম দিন, সেই দিনগুলোকে আমরা এই ম্যানিফেস্টোর মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে বাংলাকে জয়যুক্ত করতে পারি। আমি আবারও বলি, আমাদের দায়িত্ব হবে এই বাইনারিকে ভাঙার, এবং আমাদের সামনে যে মানুষটির প্রতিচ্ছবি থাকবে সেটি হচ্ছে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধানচন্দ্র রায় নেই, বিজেপির বিধানচন্দ্র রায় নেই, কংগ্রেসের বিধানচন্দ্র রায় আছে। আজকে বিজেপির বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ লড়াই শুরু করেছে, বাংলার মাটিতে আমরাও লড়াই শুরু করেছি এবং আমরা মনে করি আমরা সাকসেসফুল হব। আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য। আমি এখন অনুরোধ করব আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী শুভঙ্কর সরকারকে তার কিছু মূল্যবান বক্তব্য ম্যানিফেস্টো সংক্রান্ত আপনাদের সামনে রাখতে। নমস্কার। প্রত্যেককেই প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। প্রথমেই আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, যিনি একেবারে শুরু করেছিলেন একটা গ্রামের মধ্যে থেকে আর পৌঁছেছেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। যত অন্যায় হচ্ছে তার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের ভেতরে এবং পার্লামেন্টের বাইরে, যিনি বিধায়ক থেকে সাংসদ, সংসদ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সেখান থেকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, তাকে আজকে আমাদের ঠিক নির্বাচনের প্রাক্কালে আমাদের যে বাংলার কথা, বাংলার যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ, বাংলার মানুষ যাকে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে জানতে চায়, বাংলার ভয়েস, বাংলার আওয়াজ, সেটা হলো জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহার, ম্যানিফেস্টো। তার এই উদ্বোধনে
গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে তিনি আসাম থেকে এখানে এসেছেন। আমরা সবাই তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। জয়রাম রমেশজি আছেন, গুলাম আহমদ মির্জি আছেন, এখানে আমাদের প্রকাশ যোশীজি, আমাদের বিপি সিংজি, সাংসদ ঈশা খানজি, প্রদীপ ভট্টাচার্য জি, আম্বা প্রসাদজি এবং সাপরাজি, অমিতাভ চক্রবর্তী এবং মিতা চক্রবর্তী, প্রদীপ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং অমিতাভ মিলে এই ম্যানিফেস্টো তৈরি করেছেন সবাইকে নিয়ে। আমরা এই ম্যানিফেস্টোর উদ্বোধনে শুধু এই কথাই বলতে চাই, আগামী দিনে আমরা পশ্চিম বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে এক উন্নয়নের সরকার দেখতে চাই। আর তারই বার্তা বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আমরা কিন্তু এই ইস্তাহার তৈরি করেছে কংগ্রেস, এবং আজকে সেই মানুষটির হাত দিয়ে এর উদ্বোধন হবে। আমি প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, কংগ্রেস পরিবারের পক্ষ থেকে আজকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের সবার নেতা হচ্ছে যারা এখানে আছেন, তার সঙ্গে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, তার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি এসে আজকে কংগ্রেস পরিবার বাংলার সবার সামনে দাঁড়িয়ে এই ইস্তাহার উদ্বোধন করবেন। আমি সবাইকে আর একবার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আজকে আসুন বিজেপির কমিউনাল পলিটিক্স এবং তৃণমূলের বাইনারি পলিটিক্স, দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে একভাবে একে অপরের বন্ধু হিসেবে তারা নিজেরাই এই বাংলায় থাকতে চান, তৃণমূলকে হাঁটাতে হবে, বিজেপিকে রুখতে হবে, এটাই আমাদের মূল মন্ত্র। এই ইস্তাহারের মধ্যে দিয়ে আমরা আগামী দিনে সেই কাজটি করতে চাই। নমস্কার। We will now request our AICC General Secretary Gulam Ahmed Mir ji to say a few words. आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, देश के बहुत ही सीनियर तजुर्बेकार लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और डाइस पर बैठे हुए प्रदीप दास से लेकर जयराम रमेश जी और ये सारे साथी, आज के इस ऐतिहासिक इस ओकेजन पर हम सब के लिए ये एक प्राउड का मोमेंट है कि वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 के इस पहले पड़ाव में मैनिफेस्टो रिलीजिंग के लिए कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खुद हाथों से इसका हम शुभारंभ कर रहे हैं। हम ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे गुजारिश करेंगे हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि वो आज हमारा ये मैनिफेस्टो जो हमारा रोड मैप होगा, और इसी पर हम आने वाले 1 महीने लोगों के बीच में जाएंगे, हमारी बात रखेंगे, उसको माननीय अध्यक्ष जी के हाथों से हम रिलीज करेंगे। अध्यक्ष जी, ये प्लेट पर आ रहा है, आपके सबके पास कॉपी है। ये बाद में ये मैनिफेस्टो है, ये गारंटी है। ठीक है भाई, पहले ये करता है।
गुजारिश करेंगे हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि वो आज के इस अवसर पर अपना बात रखें। खड़गे जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठे हुए हमारे राज्यसभा के चीफ व्हिप, मीडिया के हमारे मुखिया जयराम रमेश जी, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री गुलाम मोहम्मद मीर जी, हमारे अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी, सीनियर लीडर प्रदीप भट्टाचार्य जी, एमपी ईशा खान चौधरी जी और ऑल एआईसीसी सेक्रेटरीज, लीडर्स, स्पोक्सपर्सन्स और यहाँ पधारे हुए मेरे दोस्तों और खास करके मीडिया के मेरे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अनेक बार आया हूँ, लेकिन खास करके चुनाव के बारे में कहने के लिए मैं कलकत्ता में कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। एक बार कांग्रेस ऑफिस में जब शायद भट्टाचार्य थे क्या, हाँ, सुमेर मित्रा जी थे और सीनियर लीडर भट्टाचार्य जी थे और भी थे। उस वक्त मैं आया था। फिर बाद में जो पार्लियामेंट के जितने भी चुनाव हो गए वो सिर्फ मैं हमारे गनी खान चौधरी साहब के एरिया में ही फिरते रहा, तो इसीलिए आपसे कम मुलाकात हुई, लेकिन हम मिल रहे हैं और यहाँ पर मैं चंद बातें आपके सामने करूँगा। और पहला मेरा इंट्रोडक्टरी रिमार्क है कि हम बहुत दिनों के बाद बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को एक नया विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र जनता के लिए राहत और बंगाल के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। महिलाओं को 2000 महीना, किसानों को 15,000 सालाना, 10 लाख हेल्थ कवर और यूथ के लिए जॉब्स, हर डिस्ट्रिक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की योजना, ये सारी चीजें तो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और ये मैनिफेस्टो की कॉपी तो आपको मिली होगी या देंगे शायद, तो आप इसमें सारी चीजें डिटेल हमने बताया है। मैं सिर्फ मेन मुद्दे आपको बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा मैनिफेस्टो सिर्फ पैसा बांटने की बात नहीं करता, ये इकोनॉमी रीबिल्ड करने की बात करता है, यानी रिलीफ भी
रिफॉर्म भी और फ्यूचर भी। उसी के साथ हम ये कहेंगे कि बंगाल में 15 वर्षों से टीएमसी सरकार है, इसके बावजूद बंगाल में बदलाव नहीं हो सका। यहाँ उद्योग की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, और दूसरी तरफ बीजेपी जब भी बंगाल की बात होती है, बीजेपी के लोग इकोनॉमी की बात नहीं करते, वो सिर्फ पोलराइजेशन की बात करते हैं और उसी के ऊपर उनका राजकारण और राजनीति चलती है। ना जॉब्स पर क्लैरिटी है, ना इंडस्ट्री रिवाइवल प्लान है, ना यूथ रोड मैप है। बीजेपी का थर्ड फॉर्मूला ध्रुवीकरण, द्वेष और डर है, और वो सबको डराकर धमकाकर अब तक काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रख के धमका कर आज कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को उसने अपने तरफ लिया है। किसी को ईडी का डराते हैं, किसी को इनकम टैक्स, किसी को विजिलेंस का, किसी को क्रिमिनल केस का, कुछ ना कुछ लगाकर वो लोगों को डराकर अपने तरफ लेने की कोशिश करते हैं, और करके वो अपनी गवर्नमेंट को नॉट ओनली लाना चाहते हैं, लेकिन जो चुन के दूसरे पार्टी से आते हैं उनको भी अपने तरफ खींच लेने का वो काम करते हैं। कांग्रेस ये सॉल्यूशन लेकर आई है। हम सभी सरकार वैकेंसीज को तुरंत भरेंगे। हमारे पास सत्ता आ गई या हम जो अपेक्षा कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे अधीन में होगा वो पूरे वैकेंसीज तुरंत भरेंगे। हर जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। आर्थिक विकास को गति देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। एक समय ऐसा था कलकत्ता एम्प्लॉयमेंट के लिए देने के लिए मशहूर था, इन्वेस्टमेंट के लिए मशहूर था। लोग इंडस्ट्री अगर लगाना चाहते थे तो पहला कलकत्ते के तरफ देखते थे, लेकिन आज कलकत्ता के युवा महाराष्ट्र में जा रहे हैं, बेंगलोर में आ रहे हैं, पूना में जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं, हैदराबाद में जा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना यहाँ पर माहौल खराब हुआ है, और हमारे यंग जनरेशन जो डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। उसके लिए ऐसा कोई प्लान गवर्नमेंट का भी नहीं है, और जो बीजेपी सेंटर में हुकूमत करती है और बड़े बड़े बातें करती है, वो तो यहाँ कुछ नहीं की। सिर्फ लड़ाई लगाना, झगड़ा लगाना, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करना, यही उनका काम बन गया है। इसलिए एक तीसरा विकल्प लेके हमने यहाँ आया है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यम मार्गी, वो उस मध्यम मार्ग को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी समस्या, मैंने जैसा कहा कि बेरोजगारी, स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वह राज्य छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। हमारा बंगाल मैनिफेस्टो इस चुनौती का ठोस जवाब
देता है। इसके तहत बंगाल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन शुरू किया जाएगा। स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाएगी और स्किल डेवलपमेंट के साथ एआई एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट, इस मैनिफेस्टो में महिलाओं को बेनिफिशियरी नहीं, ड्राइवर का इकोनॉमी माना जाएगा और वो लोग इकोनॉमी को डेवलप करने में अपना हाथ बटाएंगे, मजबूत करेंगे। इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट को हमारा महत्व है। हम महिलाओं को 2000 हर महीना देंगे। महिलाओं को पीजी तक फ्री एजुकेशन देंगे जिससे वो सशक्त हो सके। हम उनकी सेफ्टी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 लाख तक का पूरी तरह स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा ताकि हर नागरिक को सस्ती और बेहतर हेल्थ केयर मिल सके। फार्मर वेलफेयर, किसानों के लिए 15,000 वार्षिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी और बेहतर प्रोक्यूरमेंट सिस्टम सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि उनकी आय और सुरक्षा दोनों बढ़ सके। लॉ एंड ऑर्डर, हमारा मैनिफेस्टो स्पष्ट करता है कि अपराधी चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाएगा और चुनाव निष्पक्ष कराए जाएंगे। बंगाल को पार्टी राज से निकालकर रूल ऑफ लॉ की दिशा में ले जाना होगा। आज बंगाल के सामने 3 रास्ते हैं। एक, आज बंगाल के जो मौजूदा रास्ता, यहाँ पर तो करप्शन का आपको तो मालूम है कि एक मिनिस्टर के घर में मैं सुना 25 करोड़ रुपए 50 अच्छा मिले और वो आगे की स्टोरी आपको सबको मालूम है, मैं ज़्यादा उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। तो ये दर्शाता है कि करप्शन यहाँ बढ़ा है और इसको कंट्रोल में नहीं रखा गया तो ये कलकत्ता या हमारा बंगाल जो बहुत फेमस है कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ के देशभक्ति को लोग हमेशा याद करते हैं। और दूसरा, बीजेपी का रास्ता ध्रुवीकरण और नफरत का। बीजेपी हमेशा नफरत करती है, एक दूसरे से झगड़ा लगाती है। और मोदी जी कल ही आसाम में बोल रहे थे कि उन्होंने कोट किया, शायद राहुल गांधी जी का याद उनको आया होगा। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। तो जब राहुल गांधी जी बोलते थे तो उसी को वो कोट करके बोले वहाँ पर कि मोहब्बत की दुकान नहीं, वो तो नफरत की दुकान वो खोलते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने कहा, मैंने अपने पेपर्स में पढ़ा। यानी खुद नफरत करते हैं, डिवीजन करते हैं रिलीजन्स में, समाज में। तो वो ऐसे प्रधानमंत्री बीजेपी का जो उन्होंने नेतृत्व भी करते हैं और वो ध्रुवीकरण से अपनी सरकार लाना चाहते हैं, तो उसको भी हम
टक्कर देने के तैयारी में है। तीसरा कांग्रेस मॉडल वेलफेयर, जॉब्स और सिस्टम रिफॉर्म्स का। अब निर्णय जनता को शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स चाहिए या लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के बीच करना है, और ये जो है हम दूसरे स्टेट में भी करके दिखाए हैं। जितने भी गारंटीज हमने दी है वो गारंटीज हमने निभाई है। कर्नाटक में हमने दिए, वो निभाए हैं। तेलंगाना में हमने दिया, वो निभाए हैं। हिमाचल में जो दिया है वो भी हमने निभाया है। हर जगह हमने जो कहा, कहते हैं, वो करते आते हैं। और हमारी गवर्नमेंट आज ही नहीं, पहले के इतिहास भी आप खोल के देखिए, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स का हो, चाहे वो राष्ट्रीयकरण का हो, जो 10 पॉइंट प्रोग्राम, जो अमीर लोग थे, जो राजा लोग थे, उनकी जितनी भी हकूक थे उसको लेकर उन्होंने एक देश में सामान्य वर्ग को महत्व देकर जो काम किया, वो हमारा आदर्श सबके सामने है। दूसरा, एक बंगाल को सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, बल्कि देश में अपना परचम लहराना है। क्योंकि बंगाल एक ऐसा देश है जिसकी छवि सिर्फ हमारे देश में नहीं, सारे दुनिया में है। इसको हम उसी तरह से अगर बढ़ाना, यहाँ बंगाल का एक झंडा अगर उठाना है ऊपर, या उसको इसकी एक जो काबिलियत कहिए या उसकी पहचान कहिए, इसको जो कायम रख के हम लोग बंगाल का महत्व रखने के लिए पूरा काम हम करेंगे। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, और ये मैनिफेस्टो उसी दिशा में एक सीरियस, स्ट्रक्चर्ड और ऑनेस्ट प्रयास हम करने के लिए आपके सामने दिए हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा और भी समय न लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हम काम करने के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए ये कदम उठाया है। हम चाहते हैं कि आपसे माध्यम से जनता इसको देख ले और हमको पूरा मदद करे, यही आशा हम करते हैं। और बाकी का तो हमने जो कुछ मुद्दे रखे हैं, इसका प्रचार और प्रसार हमारे पार्टी के लोग करेंगे, और उसके बारे में मैं और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए मैं अपने 4 शब्द को समाप्त करता हूँ। अगर कुछ पूछना है तो 1-2-4 शब्द मैं ले सकता हूँ, और जितना मुझे मालूम है आपको मैं बताऊंगा। So just wait one at a time. We'll get you a mic. Asfaq? जरा जोर से मत बोलो, उसको जरा The mic. आहिस्ता करो। But before we go into that, there is a special request from our president. We want Sir Jairam Ramesh ji to say a few words to you. नमस्कार साथियों, 1962 में 1962 में बॉलीवुड का एक सुपर हिट आया था, और वो एक बंगाली फिल्म पर आधारित था। हेमंत कुमार उसके म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, उसके मेन एक्टर विश्वजीत थे, और उस फिल्म का नाम था 20 साल बाद। वो 20 साल बाद फिल्म बंगाली फिल्म जिघांसा पर आधारित था। मैं इसलिए ये बात आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि 20 साल बाद कांग्रेस अपने ही बल पर पहली बार यहां लड़ रही है। ठीक 20 साल बाद 2006 में हम अपने बल पर लड़े, 2026 में हम अपने बल पर लड़ रहे हैं। तो जैसा कि
हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, ये हमारे पार्टी और संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए और बंगाल की जनता के लिए एक बूस्टर डोज के माफिक। कांग्रेस का लड़ना अपने ही बल पर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज करना और तीसरा रास्ता दिखाना, मौजूदा रास्ता नहीं, बीजेपी का रास्ता नहीं, पर कांग्रेस का रास्ता दिखाना, मैं समझता हूं हमारे लिए, बंगाल की, पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, आप लोग सब संविधान के बारे में जानते हैं, पर कम लोगों को जानकारी होगी कि हमारे संविधान में 22 चित्र हैं, 22 इलस्ट्रेशन हैं, जो हमारे भारत के इतिहास को मोहनजोदारो और हड़प्पा से लेकर वो दर्शाता है। वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और अंग्रेजी में पहले 2 कॉपी थे, जिस पर 290 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य ने अपना सिग्नेचर किया, उस संविधान में 22 कला थे, ललित कला, इलस्ट्रेशन था। और इस इलस्ट्रेशन की जिम्मेदारी किनको दी गई थी? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस शांति निकेतन में थे और नंदलाल बोस और उनके साथियों ने हमारे संविधान में ये 22 चित्र बनाए। आज उसी नंदलाल बोस के परिवार के सदस्यों को SIR के वजह से इलेक्टोरल रोल से हटाया गया। उसी नंदलाल बोस जिनका योगदान हमारे संविधान के बनाने में विशेष महत्व था, उनके पोते और उनकी पत्नी इलेक्टोरल रोल में उनका नाम शामिल नहीं है। तो ये SIR का मसला जो है पश्चिम बंगाल में, ये बड़ा खतरनाक हथियार है। बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन ने जो ये तोप चलाया है SIR के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता को, पर इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी नागरिकों को इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जाएगा। अंतिम बात मैं कहूंगा, 3 महीने पहले लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर एक विशेष बहस हुआ और इस बहस का मकसद क्या था? इस बहस का मकसद था बंकिम बाबू के कंधे पर तोप बिठाकर बीजेपी रविंद्रनाथ टैगोर को निशाना बना रही थी। आपको याद होगा, जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जो हम गाते हैं, 1937 में कोलकाता में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में, जहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने ये वंदे मातरम जो गाना है, नेशनल सॉन्ग है, वो कैसे हम अपनाएंगे वो तय किया गया था। और किसके कहने पर? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। और ये बीजेपी आज टैगोर को बदनाम कर रही है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बदनाम कर रही है और हमारे जनगण मनो को भी वो हटाना चाहते हैं। ये इनकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। तो जैसा कि खरगे जी ने कहा, ध्रुवीकरण का रास्ता, द्वेष का रास्ता, नफरत का रास्ता, ये बीजेपी का रास्ता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए और मौजूदा जो शासन में कमियां हैं, जो विफलताएं हैं, उससे हटने के लिए
कांग्रेस ने तीसरा रास्ता दिखाया है। और ये जो 5 गारंटियां हमारे घोषणा पत्र में दिया गया है, जिसका उल्लेख अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने किया, मैं समझता हूं ये पश्चिम बंगाल की जनता के लिए एक नया मार्ग दिखाएगा। तो 20 साल बाद कांग्रेस को नया ऑक्सीजन मिला है और हम समझते हैं कि टीएमसी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं। पश्चिम बंगाल में एक नए सिक्के की जरूरत है। ये पुराना सिक्का जिसमें एक चेहरा टीएमसी और पीछे का चेहरा बीजेपी, इससे हमें छुटकारा मिलना है। तो इस नए चेहरे को मैं समझता हूं इसका रूप इस मैनिफेस्टो में दिया गया है। शुक्रिया। Before we go for vote of thanks, can I request Amitabh Chakraborty to just give first question answers? Okay. All right. Asfaq, to the lady. One at a time. She has already got the mic. You will get the mic next. Kharge ji, this side. It's a question that you, Mamata Banerjee is an integral part of the India bloc, and yet she is attacking Congress here, and you are also proposing another third ally. So how do you derive to this equation right now? ये थर्ड ब्लॉक फोर्थ ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं है। हर स्टेट में अलग अलग लड़ते हैं, जो असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट इलेक्शंस भी, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से देश के हित में हम सब एक होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसा आज यहाँ पर हम लड़ रहे हैं, वैसा ही हम केरला में लड़ रहे हैं,